एंजाइम इनहिबिटर होते हैं जो एंजाइम को चेंज देखेंगे अभी, बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम इनहिबिटर्स आर ब्लॉकिंग द कैटालिसिस एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, नॉट दे आर डिस्ट्रॉइंग देयर एक्टिविटी। ओके, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं, पॉइजन्स हैं, दे आर एक्ट एज द इनहिबिटर्स। ओके, so this is all about the enzyme inhibitor. So first thing, this is decrease the catalytic activity of an enzyme. They are very specific, and in low concentration they can inhibit the catalysis activity, and they block the enzyme catalysis activity but not change the, usually they are not destroy the catalysis activity. So according to this, we can classify enzyme inhibitor into two classes. First is reversible and second is irreversible. Reversible can again classified as competitive reversible, uncompetitive reversible and non-competitive reversible. Okay, so one by one, this is very important for exam purpose. आ ही गया समझो, है ना? So this is very important. Please इसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे. Am I audible? Reaction which proceed in forward and backward direction both. Okay. तो रिवर्सिबल मीन्स क्या हुआ? इनहिबिटर्स बाइंड्स नॉन कोवलेंटली विद एंजाइम्स, नॉन कोवलेंटली ही बाइंड करेंगे तो दैट कैन बी इजीली रिमूव्ड, है ना? सो इनहिबिटर्स कैन बी इजीली रिमूव्ड बिकॉज दैट इनहिबिटर्स बाइंड्स विद द एंजाइम with non-covalent bond, or non-covalently with enzymes the inhibitors will bind. Okay, so the binding, because of that non-covalent and bonding, they are weak in nature and inhibition is reversible. ठीक है, फॉरवर्ड में अगर जुड़ गया तो ऐसा नहीं कि वो डिटैच नहीं होगा. ठीक है, तो इजीली हम इसको डिटैच भी कर सकते हैं, जो कि इसका मेन कैरेक्टर है. ओके, सो इससे क्या होगा? दे डू नॉट कॉज द, जस्ट एज आई टोल्ड यू दैट मोस्ट ऑफ द इनहिबिटर्स कैन नॉट permanently change the enzyme, but they hamper or they block the enzyme catalytic activity. So they do not cause any permanent changes in the enzymes. Okay, अब reversible inhibitors जो होते हैं, they are classified into two categories. First is competitive and second is non-competitive. As I told you that they are categorized into two categories as a competitive and non-competitive, and the class there that is uncompetitive. ठीक, uncompetitive. But later I will tell you what is uncompetitive. But reversible inhibitors of enzymes can be classified into two categories, that is competitive and non-competitive. Competitive reversible inhibitors or inhibitions. It is inhibitors denoted by I and substrate is denoted by S. That is, तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स में क्या होगा? ये आप अगर देखेंगे तो एज वी नो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इज फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड आफ्टर दैट एंजाइम डिटैच्ड फ्रॉम द it form product and enzyme detached from that product. Okay, so this is the basic reaction. But if inhibitor will added with the bind with the enzyme, what will happen? The enzyme plus inhibitor form EI and there will be no product formation. Okay, so this will attach with non-covalent bond. Because of that, this reason it will be detached easily. Okay, and simple, with the help of simple dialysis we can remove the inhibitor. Also, if we increase the substrate concentration, we can subside the problem of that inhibitor. ठीक है, आगे हम बताएंगे. तो इनहिबिटर को अगर हटा टाइम है, अच्छा, लेकिन और सक्सिनेट जो है सबस्ट्रेट है और इनहिबिटर मैलोट है. हमेशा इनहिबिटर से नुकसान हो ऐसा इनहिबिटर का यूज अपन ट्रीटमेंट में, जैसे कि कैंसर थेरेपी, गाउट थेरेपी, जितने भी प्रोटीन मेटाबॉलिक डिजीजेस होते हैं उन सबको ट्रीटमेंट करने में भी यूज करते हैं. तो ये इसका यूज हो गया. हमेशा इनहिबिटर खराब होगा ऐसा, हम बात कर रहे थे.
तो यहाँ क्या यूज है सक्सिनेट का, यहाँ क्या यूज है सक्सिनेट और मेलोनेट में। मेलोनेट क्या करते हैं, क्या करता है, इसको हम यूज करते हैं कैंसर, इसको हम यूज करते हैं कैंसर अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल जो है वो कैंसर कहलाता है, सेल जो है वो कैंसर कहलाता है। तो अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल कब होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल होगा मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा सेल को ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज किसके चाहिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। तो ये एनर्जी जो है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से मिलेगा। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अगर होता है और अगर वो हैम्पर हो जाता है, अगर वो हैम्पर हो जाता है साइकिल, तो क्या होगा, साइकिल ग्लूकोज का अपटेक कम हो जाएगा, है ना। तो अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल जो है वो ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। तो बाय दिस मेथड वी कैन अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, वी कैन से दैट वी कैन स्टॉप द कैंसरस ग्रोथ सेल, ठीक है। तो मेलोनेट का ये यूज हो गया, तो मेलोनेट का ये सेकंड इज डाइहाइड्रोफोलेट एचएमजी, जिसने पढ़ा है आप लोगों ने, अभी नहीं पढ़ा है, लिपिड मेटाबॉलिज्म में। So this all are the inhibitor which inhibit the enzyme by binding with that enzyme in place of substrate. Okay, so these all are the example of competitive inhibitors. So how it will work? मैंने आपको बताया था कि this is analog, this cleft is just look like the substrate, means inhibitor का cleft, so that will binds with the enzyme, and other enzyme inhibitor will bind with that place, so that will hamper the reaction, कुछ और ही होगा, है ना, product formation. So that will ultimately act as a competitive reversible inhibitor. अच्छा, मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि अगर हम ग्राफ देखें, आगे दोनों ग्राफ देखेंगे, एक तो लाइन-विवर-बर्क प्लॉट भी देखेंगे एंड वी विल सी दैट द नॉर्मल ग्राफ आल्सो. सो इफ यू विल सी दैट इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर हम देखें कि Km जो है इट विल चेंज विद कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर बट Vmax विल बी अनचेंज्ड, ठीक है। चाहे वो हाफ वी मैक्सिमम वेलोसिटी हो या फुल मैक्सिमम वेलोसिटी हो, इट विल नॉट चेंज बट Km will change, ठीक है। अगर हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो करेंगे, मतलब अगर बाइंड करेगा तो Km वैल्यू जो है इट विल इंक्रीज, ठीक है। लाइन-विवर-बर्क प्लॉट में भी हम देख रहे हैं कि Vmax जो है इट विल अनचेंज्ड, बट देखो अनचेंज्ड, बट जो Km वैल्यू है इट विल इंक्रीज। नाउ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होगा, नॉन कॉम्पिटिशन मतलब कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, सबस्ट्रेट की तरह नहीं होगा मतलब, बट ये क्या करेगा, कहीं एंजाइम के दूसरे साइड पे जाकर बाइंड कर जाएगा, और क्योंकि दो चीजें बाइंड हो गई है, सबस्ट्रेट भी बाइंड हो गया है एंजाइम के साथ और इनहिबिटर भी बाइंड हो गया है, मतलब इसका फंक्शनल कुछ चेंज हो गया है, और फंक्शनल चेंज हो गया है तो कुछ और अलग प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो बनेगा नहीं। तो बाय दिस ये क्या करता है, इनहिबिशन करता है, इसलिए इसको, क्योंकि ये सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन नहीं करता है, इसलिए दैट इज नोन एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें Km वैल्यू जो है वो अनचेंज रहेगा और Vmax जो है वो कम हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, Km वैल्यू इज अनचेंज्ड एंड Vmax इज लोअर्ड इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक। तो बहुत सारे हैवी मेटल्स जो होते हैं, जो भी हैवी मेटल्स होते हैं, दे आर compete non-compete with the substrate and they are ultimately causes non-competitive inhibition. They are also known as enzyme poison, ठीक है। उसको कहते थे सबस्ट्रेट एनालॉग, और जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है दैट इज नोन एज एंजाइम्स पॉइजन, ठीक। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों नाम से कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। एज आई टोल्ड यू दैट एंजाइम में दो शेप बना दिया है समझाने के लिए, एक में कहीं इनहिबिटर जाके बाइंड कर गया है और सबस्ट्रेट कहीं जाके बाइंड कर गया है, जो सबस्ट्रेट का प्लेस है। तो इसकी वजह से कन्फर्मेशनल जो है वो चेंज हो गया है, और अल्टीमेटली जो इनहिबिशन होने की वजह से कोई प्रोडक्ट है दैट विल नॉट फॉर्म। तो इसमें क्या होगा, एज आई टोल्ड यू दैट Km वैल्यू विल रिमेन अनचेंज्ड
and Vmax will decrease. ठीक है, इसमें नो इनहिबिटर है तो ऐसा होना चाहिए, और अगर हम Km वैल्यू देख रहे हैं तो दैट इज अनचेंज्ड, सेम जगह पे जा रहा है Km वैल्यू, मैक्सिमम मैचुअली मेंटेन कांस्टेंट। ठीक, अगर हम लाइन वेबर बर्ग प्लॉट देखें तो अगर हम कितने भी इनहिबिटर ले 1 2 3, it will again binds with the different places of enzymes, and ultimately it changes the product concentration or product different product, and here Km value is unchanged and Vmax is lowered. Now this is very important, is ये difference between competitive and non-competitive inhibition है, very important. It is acting on active site and it may or may not be. ठीक है, तो ये difference जो है ये आपको पढ़ना है, and this is very important for exam purpose. Now what is uncompetitive inhibitor? तो हमने देखा रिवर्सिबल जो इनहिबिटर होते हैं that can be classified into two major categories. First is competitive and second is non-competitive reversible inhibitors. There is one another inhibitors that is known as uncompetitive inhibition. In this, there is no, and this does not have any affinity for the active site of the enzyme. There is one site that is known as active site where the enzymes, where the substrate binds with the enzyme. That site is this sites having there is no affinity for the binding for the active site of the enzymes, that are known as uncompetitive inhibitors. They are known as the free enzymes. मैंने आपको बताया था कि reversible non-competitive inhibitors are also known as enzyme suicidals, or that is known as enzyme suicidal, and जो first वाला था that is reversible competitive inhibitors, that is known as substrate analog enzymes inhibitors. ठीक है, तो दो चीजें हैं नाम, इसके अलावा in this the Vmax और Km दोनों ही डिक्रीज होंगे, वही सब है। तो phenylalanine inhibits alkaline phosphatase in intestinal cell. This is the example, this is the process of uncompetitive inhibitors. Here both will decrease, Vmax and Km both will decrease. Now irreversible inhibition, am I audible? 3-phosphate dehydrogenase. इसके अलावा this is the example of irreversible inhibitor. ठीक, जैसे वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपन यूज किया गया था DFP, तो this is the example of this is a toxic substance which act as a irreversible inhibition, and this is used for the enzyme inhibitor. नर्व्स पॉइजन था, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, है ना। सब एग्जाम्पल है। ठीक, आज भी एनिमल्स में यूज किया जाता है डायसल्फेरम, आप लोग जब फार्मा में पढ़ेंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा, एंड इट इज ऑल्सो इन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म। और अभी भी जब बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें क्या होता है, एनिमल जो है बहुत सारा चावल लोग फेंक देते हैं और महान बनते हैं कि हमने जानवर को चावल खिला दिया, शादी ब्याह में चावल नहीं फेंकते हैं, तो एनिमल वो खा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे में क्या बन जाता है, ये कंज्यूम जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में। ठीक, एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस जहां भी होगा इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू पायरुवेट बट इट विल कन्वर्टेड इनटू लैक्टोज, और जैसे ही ये लैक्टोज में कन्वर्ट होगा, लैक्टोज नहीं लैक्टेट, तो लैक्टेट में कन्वर्ट होने के बाद इट विल कॉजेस यूज करते हैं डायसल्फेरम। ठीक, नाउ व्हाट इज सुसाइडल इनहिबिशन?
सुइसाइडल इनहिबिशन जो होता है, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इसमें क्या करता है, खुद ही अपने आप को इनहिबिट कर लेता है, ये इसलिए इसको बोल रहे हैं सुइसाइडल। ठीक है, तो दिस इज द मैकेनिज्म व्हिच इज बेस्ड ऑन द इनएक्टिवेशन। ओके, द मैकेनिज्म बेस्ड ऑन इनएक्टिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, दिस इज द मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन इनएक्टिवेशन। तो इन केस इसमें क्या होता है, जो ओरिजिनल इनहिबिटर होता है दैट इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चरल एनालॉग एंड दैट विल कन्वर्ट इट इटसेल्फ टू द just like the inhibitor, and by this it will inhibit the same, means क्या होगा कि अपने आप को वो इस तरीके से चेंज कर लेगा कि वो कंपटीशन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के मोड पे अपने आप को चेंज कर लेगा। ठीक है, तो वो खुद को ही क्या कर देगा, इनहिबिटर की तरह काम करेगा, है ना, तो इसलिए बोल रहे हैं इसको सुइसाइडल, खुद ही खुद को मार देगा। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल इज एलोप्यूरिनॉल, मैंने आपको बताया था एलोप्यूरिनॉल, इट इज यूज्ड इन केस ऑफ गाउट। ओके, इट इज इनहिबिटर फॉर xanthine ऑक्सीडेज एंजाइम एंड इट गेट कन्वर्टेड टू एलोजेंथीन, और एलोजेंथीन जो होता है इट इज अ मोर इफेक्टिव इनहिबिटर ऑफ दिस एंजाइम। ठीक है, xanthine का मोर एलोप्यूरिनॉल्स की अपेक्षा जो एलोजेंथीन होता है दैट इज द मोस्ट effective inhibitor for this enzyme. So in place of allopurinol we can use as alloxanthine, और alloxanthine जो होता है वो क्या करता है, खुद ही खुद को इनहिबिट करता है। ठीक, क्योंकि वो स्ट्रक्चरली चेंज कर लेता है अपने आप को, एंड by this it can decrease the activity of that particular enzyme catalysis. Okay, इसी का हमने डिटेल लिखा है। used for the cancer therapy, it is also used for the cell growth structures, जितने भी होते हैं कैंसर थेरेपी के अलावा जो भी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्वमेंट है दैट इज आल्सो इनहिबिटेड बाय दैट एलोप्यूरिनॉल। ओके, एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सुसाइडल इनहिबिटर। आजकल बहुत इस पे काम हो रहा है, N5N10 टेट्राफोलिएट को हम इनहिबिट करते हैं, दैट इज UDUMP। ये क्या है, UMP यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, है ना, so that is inhibited the particularly action of that growth activity, and by this it will hamper or it can use for the anti cancer। ठीक है, कैंसर थेरेपी में we can use this thing। एलोस्टेरिक रेगुलेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।